Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all our respected speakers, colleagues, and participants. I am Dr. Saqib Mushtaq, and I have the privilege of serving as your moderator for today's session. Organized under the platform of the Global Entomologist Network, it is an honor to open this career counseling workshop, Job Opportunities in the Gulf region. The Gulf region today stands among the fastest growing hubs for agriculture, food security, and environmental services. With increasing investment in modern farming systems, pest and disease management, greenhouse technology, and agricultural consultancy, the demand for qualified professionals is expanding rapidly. The aim of this workshop is twofold. Number one, to share practical insights into the career opportunities available in the Gulf and to provide guidance on how graduate and professionals like you can prepare themselves to meet these opportunities. Over the course of our discussion, we will explore current job trends and professional requirements in agriculture and allied sciences, the importance of preparing a competitive CV, building networks, and excelling in interviews, cultural and workplace adaptability in Gulf countries, and professional pathways in both industry and research domains. I am especially pleased to see participation from such a diverse group, from bachelor's and master's students to PhD graduates. This highlights that career counseling is not just a one-time step, but rather a continuous process of learning, self-improvement, and planning ahead. Before we move forward, I encourage all participants to engage actively, ask questions, and take advantage of knowledge and experience that our distinguished speakers will share. Remember, today's event is not just about listening. It is about networking, exploring opportunities, and shaping your professional journey. Moreover, I want to introduce myself. As most of you know that my name is Dr. Saqib, and I'm the founder and coordinator of this Global Entomologist Network. And also I have my team with some volunteers. Those are working with me, Dr. Mehreen, Aisha Faryad Khan, Mr. Amani Mulk, and we have some volunteers from different universities, different cities of Pakistan, and we are also expanding our network. Our final speaker is Mr. Faisal Mushtaq, who is an entomologist with a degree in entomology from the University of Sargodha and professional experience in both Pakistan and Saudi Arabia. He is currently working with Al Houthi Pest Control as operations and sales coordinator, where he manages pest control operations and client services. Today, he will share his insights on working in the Gulf region and building a successful career in pest management. Mr. Faisal Mushtaq, we are honored to have you with us. The floor is yours. Please, you can start your presentation now. Thank you. Yeah, I request if you can use the language mode as Urdu or plus Urdu and English, then it will be good for our listeners. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much for inviting me. I will share my screen with you. Yeah, please. Please check if I'm audible and my screen is visible. Yeah, your screen is visible. Yeah, thanks. Bismillahirrahmanirrahim. But the presentation is not visible. Screen is showing, but there is no presentation. आपकी स्क्रीन है लेकिन प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही है, शायद जूम का लिंक आपने शेयर किया हुआ है. जी, please. Now we can see your presentation. Okay.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Everyone, Assalamu alaikum. As you have already known about my introduction, so I know you have been exhausted, everyone. You have been going through a lot. Let's start the presentation. आप सबको पता है एजेंडा कि हम बेसिकली जो गल्फ है उसमें जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब सीकिंग अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे सारे हाजिर हुए हैं और उसको हम प्रोग्रेस करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद वेरी फ्यू कंपनीज दैट आई नो. You can take the screenshot from that, or the recording will be available as well, right, Orsa? Yes, yes, please. तो ये कुछ कंपनीज हैं in pest control sector. Like if we talk about the food safety, if we talk about the environment safety, or if we also talk about agriculture, entomology, and plant pathology, these are the companies who are actually actively hiring, and I have listed them based on their बिजनेस. जो उनका बिजनेस है उसकी वजह से मैंने उनको लिस्ट किया सर ताकि रिक्वेस्ट आप है, अगर लोग. उर्दू में करेंगे, कुछ पठान भाई भी हैं हमारे बलूचिस्तान से भी सराइकी, तो बाजुकात ना इंग्लिश वो नहीं पिक हो सकती ना. अगर आप उर्दू में थोड़ा सा स्लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह मैसेज. थैंक यू. ओके ओके ओके. मेरी अपनी बात इतनी अच्छी नहीं है, अब मेरे लिए कोई आसान कर कोई दिया, थैंक कोई यू. बात नहीं. ये कुछ पंजाब. कंपनीज हैं ये मैंने आपके लिए लिस्ट की हैं. चले पंजाबी नहीं करते वो फिर बिल्कुल ही लोकल हो जाएगा. हाँ, उर्दू में ठीक है. अच्छा. ऑलराइट. सो गाइस, हमारे पास ये जो कंपनीज हैं जैसे रेंटो केल बोएकर, ये लीडिंग पेस्ट कंट्रोल कंपनी है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर. इट इज एक्टिवली हायरिंग. अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे या आप डायरेक्टली इस पे भी जाते हैं रेंटो गिल पे, आपको यहाँ पे एक्टिव जॉब मिलेंगी. लेकिन मेक श्योर करें कि आप जब जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने ये नहीं कि जो लिंक्डइन पे जॉब आता है टैग, आपने उस पर जाना है. आपने इनके जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं आपने उनको टारगेट करना है. दिस विल हेल्प यू लॉट. उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर उनकी ईमेल्स भी होती हैं, और अगर हम उनकी पोस्ट रिव्यू करेंगे तो आपको फिर जो इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आपको मिलेगी. सो दीज आर द टॉप 10 कंपनीज. आई होप यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन. बाद में भी अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग में. टू किल, ट्रैप, साउथ इनिशियल, एंड इन सब कंपनीज का सऊदी अरब में एक अच्छा बिजनेस है. और जो मैंने लास्ट से मेंशन किया है फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनीज, ये कंपनीज दो डायरेक्टली पेस्ट कंट्रोल के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये कंपनीज अब अपना पेस्ट कंट्रोल इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, अपने लाइसेंस ले रही हैं. जैसे कंपनी है अल तमीमी ग्लोबल कंपनी, या इस तरह हमारे पास यहाँ पे संधाला में बहुत कंपनीज हैं. सऊदी अरब में नियोम में बड़ी कंपनीज हैं. जो बहुत सारी कंपनीज जो फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं अदर देन पेस्ट कंट्रोल, लेकिन वो भी अब अपना जो पेस्ट कंट्रोल है उसको शुरू कर रही हैं. तो रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन सऊदी अरेबिया, इट इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर डे बाय डे. अभी हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं. अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें गल्फ में, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये इसका जो स्कोप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली इन अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन other agriculture sector as well. Like if you talk about agronomists, if you talk about horticulturists as well, or even soil scientist. soil scientist के लिए मैं recommend करता हूँ, बड़ी सी कंपनी है इकोलैब. soil scientist और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है. अगर आप उसको अप्रोच करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको लाजमी उसके बारे में भी मालूमात मिलेंगी. एक्टिवली हायरिंग और ग्रेजुएट्स. अब importance of agri graduates in the region, everyone know that Saudi Arab has its vision of 2030, and with that vision, it is turning the deserts or unirrigated lands into लाइक वो उनको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर रहे हैं. जो भी उनके पास लैंड पड़ी हुई है, लाइक 80% ऑफ द लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया इज स्टिल अनकल्टिवेटेड. और जो लैंड उनके पास है उसके अंदर भी वो अब उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर वो R&D भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. और उसके अलावा अपने जो इनके इवन प्राइवेट फॉर्म्स हैं उसके अंदर भी वो हायर कर रही हैं. तो किसी ने ये नहीं अपने दिमाग में बिठाना कि मैं किस मेजर से हूँ मैं उस मेजर में ही जाऊँगा. नो.
अगर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है दैट मीन्स आप किसी भी मेजर के अंदर फिट हो सकते हैं, सऊदी अरब में खास तौर पे। बाकी जो यूरोप है या इसके अलावा वेस्टर्न साइड है, वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होना पड़े रिगार्डिंग योर मेजर। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में आते हैं देन इवन इफ यू हैव डन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बट विद राइट एक्सपीरियंसेस एंड राइट स्किल्स, यू कैन गेट द जॉब इन अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये लिखा हुआ ठीक है, रिकॉर्डिंग में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्टली बताऊंगा अपनी जर्नी। ये मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन की है विद मेजर इन एग्रीकल्चर एंड एंटोमोलॉजी, एंड आफ्टर दैट आई वर्कड एज ए कंटेंट राइटर, दैट इज इन वन ऑफ द इंटर्नशिप्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इंटर्नशिप आती हैं, उसमें मैंने एज ए कंटेंट राइटर काम किया था, ऑफिस ऑफ पब्लिकेशन एंड डिज़ाइन। देन उसके बाद आई मूव टू लाहौर, वहाँ पर एक अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर द बिगिनर्स। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं दे विल टीच यू फ्रॉम स्टार्ट। अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पे, नया पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज है, सी शाइन है, रेंटो किल इनिशियल वहाँ पे काम कर रही है। तो यह काफ़ी सारी कंपनीज हैं अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देख रही हैं, जो फूड चेन्स हैं जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, हमारे पास पापा जॉन्स है यहाँ पे, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, मैं अपना नाम स्किप कर रहा हूँ। तो उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, एंड नॉट ओनली फूड चेन्स बट ऑल्सो सुपर मार्केट्स लाइक पैकेजिस मॉल, लाइक एम्पोरियम मॉल, लाइक कारफोर, बहुत बड़ा ब्रांड है। उन सब में भी जो पेस्ट कंट्रोल है उनका बहुत एक्टिवली यहाँ पे रोल हो रहा है। तो मैंने जिस तरह स्टार्ट किया था, मैं लाहौर गया, मैंने लाहौर में पहले 1 साल काम किया अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट में। आई गेन द स्किल्स ऑफ अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट, लर्न अबाउट द फूड सेफ्टी ऑडिट्स, वो कैसे कंडक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इट हेल्प मी अलॉट। आफ्टर दैट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई वेंट टू ज्वाइन ए कॉल सेंटर। ये यहाँ पे मैं लाजिम मेंशन करूंगा, जो मेरी तरह के बाई मिडिल क्लास की हैं पाकिस्तानी, अगर आप लोगों ने बाइक निकलना है ना, आप, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि पार्ट टाइम कोई ना कोई कॉल सेंटर ना आप लाजमी करें ज्वाइन। इससे आपकी इंग्लिश बड़ी इंप्रूव होती है। एक तो मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसे मैंने काम किया 1 साल, माइंड ब्रिज, लाहौर में कॉल सेंटर है। उनको इतनी इंग्लिश नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ कॉन्वर्सेशन इंग्लिश चाहिए होती है। अगर आप अपने आप को थोड़ा बहुत भी प्रूव करते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन इंग्लिश बोल सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप उस कॉल सेंटर को ज्वाइन करें। और वहाँ पे जो सैलरीज हैं और इंटरनेशनल कैंपेन्स, वो 80,000 से 1 लाख, 1,20,000 ईजिली बनती हैं। मैं अभी 6 फिगर कमाता रहा हूँ, तो मैं लाहौर में अपनी अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कॉल सेंटर की जॉब कर रहा था। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि एक तरफ आपको अपनी जो फील्ड है उसका नॉलेज मिल रहा है, और दूसरी तरफ आपको आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और जो आपकी टाइपिंग स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स, आपको उसका भी नॉलेज हो रहा है। और आप एक, आपके आपके माइंड में एक पूरा मैप बन रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे वर्क करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत सब्र चाहिए अगर आपने उसमें एक्सेल करना है। एंड आफ्टर दैट मैं फिर लाहौर आया, और लाहौर में ही मैंने फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं एम फिल एंटोमोलॉजी स्टार्ट किया। और उसके दौरान ही मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो पता चली थी कि गल्फ में भी ये पेस्ट कंट्रोल का काम होता है, और वहाँ पर भी हायर कर रहे होते हैं, हायरिंग इनकी होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जर्नी, लाइक आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकले, आप डेफिनेटली मूव करें लाहौर की तरफ, या अगर आपकी अपनी सिटी में भी पेस्ट कंट्रोल की जॉब्स हैं या कंपनीज काम कर रही हैं तो उनके साथ काम करें। जस्ट टेक इट एज एन इंटर्नशिप। अगर आपको वो लेस पे भी करते हैं, लाइक मुझे जो फर्स्ट सैलरी मिली थी मेरी पेस्ट कंट्रोल में लाहौर में, वो दैट दैट वाज ओनली 25,000 इन 2021। तो अगर आपने वाकई एक्सेल करना है तो इस तरह की थोड़ी सारी कुर्बानी भी दे लेंगे, तो आई होप 1 साल या 2 साल बाद आप भी इंशाल्लाह किसी अच्छे मुकाम पे होंगे। तो अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट, देन अ कॉल सेंटर, एंड देन फॉलोड बाय मूविंग टुवर्ड्स अब्रॉड। मैं बाहर कैसे आया हूँ उसकी मैं आपको अपनी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने भी लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारा अप्लाई किया। मैं इवन के ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था गल्फ रीजन में, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था वेस्टर्न साइड जाने के लिए, क्योंकि हमें ज़रा यूरोप की वाइब बड़ी अच्छी आती है। तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो यूरोप पास CV अपनी बनाई हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर जॉब होगी। कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहे, जॉब भी करते रहे, साथ अप्लाई भी करते रहे। तो देन इंटरव्यू
हायरिंग और फिर अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होती है। अब मुझे भी यहाँ पे 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। यहाँ पे मैं लाजमी मेंशन करूंगा, ये जो पॉइंट है नेटवर्किंग के लिए, आपकी नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है। आप एग्रीकल्चर जो वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, अपनी नेटवर्किंग जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा शाय ना करें पूछने में। अगर आप मेरे साथ कभी कम्युनिकेट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी लाजमी सपोर्ट करूँ। अब मैं आपको रिसेंटली बताऊँ तो अभी मैं आपको इसी वीक की बात करूँ तो रिसेंटली 2 ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। आई डोंट नो देम बिफोर, मैं उनको पहले नहीं जानता था, लेकिन अब उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है। दे अप्रोच मी फॉर नथिंग, फॉर लिटरली नथिंग, फॉर फ्री। उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड फ्रॉम इंटरव्यू ऑल द वे टू देयर सिलेक्शन एंड नाउ देयर टिकट इज कंफर्म्ड इन देयर लगेज। दे हैव secured their job in Gulf as well। मेरी अपनी कंपनी में भी आ गए लड़के, और जो बाकी कंपनी है उनमें भी लड़के जो हैं वो हायर हो रहे हैं। तो अपनी नेटवर्किंग जो है उसको लाजमी स्ट्रॉन्ग करें। अपने जो रेफरेंसेस हैं उसको एटलीस्ट इस हद तक डेवलप करें कि आप, अगर आपके पास कंपटीशन कहीं पे आ रहा है तो आपको वो रेफरेंस हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक और पर्सनल एडवाइस ये दूंगा कि जो सऊदी अरब है उसके अंदर भी रेफरेंस बहुत चलता है। अगर वहाँ पे कंपटीशन कम होगा तो डेफिनेटली दे विल सिंपली स्क्रीन आउट एंड सिलेक्ट। लेकिन अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा फिर आपको अपना रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक आपके साथ के लड़के अगर काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, या आपके कुछ एक्स प्रोफेसर्स, एक्स टीचर्स गल्फ में यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनसे अपना लिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। दे विल रिकमेंड यू एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नॉट ओनली इन अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। जैसे जैसे जो सऊदी अरब है वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो इस टाइम हब बनता जा रहा है। करंटली जो न्योम प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, न्योम सिटी, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। यानी कि इससे बड़ा भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहीं पर साथ फिर उसकी लेबर, उसका स्टाफ, उनकी जो उनके होते हैं मैनेजर्स, उनके उनके लिए सेपरेट कैंप्स हैं। अब उनके अगर कैंप्स हैं तो वहाँ पे फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट है, और फैसिलिटीज मैनेजमेंट के अंदर पेस्ट कंट्रोल का रोल लाजमी होता है। तो यहाँ पे सांप एक पेस्ट है, यहाँ पे फ्लाइज के लिए पेस्ट होता है, और उसके अलावा डॉग्स, कैट्स, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं। और वो चीज़ का इशू फूड सेफ्टी के अंदर, इनके जो डाइनिंग हॉल्स हैं, इनकी किचन फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है अभी इमर्ज हो रही है मजीद भी, और ये मजीद आगे बढ़ेंगी। तो सेक्टर में अगर हम देखे जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर आई बिलीव दैट इज नंबर वन। एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और देयर लैंडस्केप इंजीनियरिंग, ये उनके लिए एक नंबर वन अपॉर्चुनिटी है। देन वी कैन लिस्ट द अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। क्योंकि वो भी यहाँ पे, चाहे वो लोकल है चाहे इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भी उन्होंने अपने ऑडिट्स करवाने होते हैं फूड सेफ्टी के, और उसके अंदर अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। क्योंकि अगर ये यूपीएम इनका फारिग हो जाए या आईपीएम में से कोई इनकी एनसी निकल आती है नॉन कंप्लायंस, तो उनका जो पूरे का पूरा एक इनवॉइस होता है, जो उनको पैसे मिलने होते हैं, उसमें अच्छी खासी डिडक्शन होती है। सो आपका जो स्कोप, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, लैंडस्केपिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हो, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। जो एक्सटेंशन के लड़के हैं उनको पता होगा कि उनका काम यही होता है, कन्विंस करना, एजुकेट करना। तो एजुकेशन एंड कन्विंसिंग इज पार्ट ऑफ बीइंग, इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन सऊदी अरेबिया। इंशाल्लाह अगर आप इस लिहाज से भी, इस सोच के साथ भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो इमर्ज हो रही हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, तो मेरे पास जो अपनी डिग्री है, जो बीएस है, एमफिल है, उसकी बेस पे आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर न्यू, देन इट डजंट मैटर इफ यू हैव आइदर बीएससी, आइदर एमएससी और पीएचडी। आप एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो सैलरीज हैं वो मैं आपको चल के बताऊंगा कि सैलरीज कितनी यहाँ पे ऑफर करते हैं। लेकिन आपने चाहे पीएचडी की हुई है, आपके 15 से 20 रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या आपकी अच्छी एमफिल की भी रिसर्च है, अगर आप न्यू हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि लाजमी होना चाहिए, 1-1.5 साल का लेके आए पाकिस्तान से एक्सपीरियंस स्टार्टर, तो जब आप सऊदी अरब आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको अच्छी सैलरीज मिलेंगी। लेकिन अगर आप न्यू हैं
तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी क्वालिफिकेशन की हुई है, आपको एक दफ़ा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप को बनवा के आप मजीद आगे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं इन डाटा एनालिटिक्स, ये क्यों इंक्रीज हो रही हैं, आई विल हाईलाइट इट हियर। क्योंकि जो एआई का दौर है उसकी वजह से बहुत सारा जो काम है, इवन के अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट का, डाटा कलेक्शन का, जो R&D डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें डाटा एनालिटिक्स का बड़ा अच्छा रोल हो रहा है। तो अगर आपका डाटा एनालाइज करना बहुत स्ट्रांग है, ये एक बहुत बड़ा स्किल अगर आपके पास है, तो आप किसी भी सेक्टर को एग्रीकल्चर में आप टच कर सकते हैं। इससे ये है कि आप, अगर आपका एनालिटिक्स स्ट्रांग है, दैट मीन्स आपके पास एक्सेल की अच्छी स्किल्स हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी अच्छी स्किल्स हैं, स्प्रेडशीट्स, आपके पास अ, जो इवन के एफएम सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, जिससे वो मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने रूम में बैठ के पूरी फील्ड एक्टिविटीज, वो आप एनालाइज कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं डाटा एनालिटिक्स के, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी सेक्टर में जाने के लिए, एग्रीकल्चर के किसी भी मेजर में जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्बन बेस्ड मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर, आपको इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप इसमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली लिस्ट में जो 10 कंपनीज हैं उनको लिस्ट किया है, अगर आप उनको देखें तो वो ये नहीं कि सिर्फ अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट को टारगेट करती हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी हायर कर रही हैं, नहीं। उनके पास लैंडस्केपिंग भी है, उनके पास टर्माइट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसके अलावा वो इन्वायरमेंटल सर्विसेज भी दे रही हैं। वो जो इन्वायरमेंटल वेस्ट होता है, चाहे वो हजार्डस है या नॉन हजार्डस है, उसको भी ट्रीट करने के लिए, उसको ठिकाने लगाने के लिए उनके पास इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट होती है। तो अ, ये सिर्फ लिमिट नहीं है यूपीएम तक या हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमिक्स तक, बाकी भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं या जो मेजर वाले हैं, वो भी अपने आप को, अपने अपने आप को यानी कि इस लिहाज से तगड़ा रखें, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अपने लिए एक चांस जो है वो ट्राई कर सकते हैं। नेविगेटिंग इमिग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब चलें, बेसिक बेसिक बातें तो हो गई कि हमने जो कौन कौन सी कंपनीज हैं उनको हंट करना है, या इसके अलावा हमने जो ट्रेंड्स हैं वो क्या चल रही हैं, स्किल्स हमें क्या क्या रिक्वायर होती हैं। आप लोगों को मोस्टली जो है ना वो रील्स मिलती रहती होंगी एग्रीकल्चर जॉब्स की, सीवीज क्रिएट करने की, इस तरह की। तो उन पे भी लाजमी थोड़ा फोकस किया करें, किसी एक रील को पकड़ के उसको डाउनलोड करें और उसके ऊपर इतना काम करें जैसे आपसे ज़्यादा किसी ने काम किया ही नहीं है। इंशाल्लाह आप उसमें माहिर हो जाएंगे और वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे जो वीज़ाज हैं टिपिकली, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आज़ाद वीज़े पे ना आए। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के वीज़ाज मोस्टली जो कंपनीज हैं वो हायर करती हैं, अ, जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं जो आज़ाद यहाँ पे लोग आते हैं उनको यानी कि प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनको वो हाई सैलरी पे भी कर सकती हैं और आवर या और डे वेज के हिसाब से, सॉरी। और उसके अलावा उनके पास इतनी फंडिंग होती है कि वो उनको बाकी जो पर्क्स हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं जिनका छोटे लेवल का बिजनेस है, वो कोशिश करती हैं मोस्टली कि वो जो भी ग्रेजुएट वो उठा रही हैं सुपरवाइजर, वो डायरेक्टली उस कंट्री से उठाएं। तो अगर तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड आप वर्क वीजे पे आते हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। अगर आपने इसको अचीव कर लिया ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने यहाँ पे आके जो आपकी एकोमोडेशन है, जो आपकी ट्रैवल है, जो भी आपका इंश्योरेंस, आपकी मेडिकल, आपके जो सारे होते हैं एक्सपेंडिचर्स, वो आपके टोटली कवर हो जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो इसलिए आपको अपने जो रेजिडेंस है उसको रिन्यू करने के लिए या अप्लाई करने के लिए अब किसी किस्म की आपको जरूरत नहीं पड़ती, इन दिस सेंस कि जो कंपनी है वो आपका टोटल वाइप आप बन जाता है उस टाइम। अगर हम बात करें आज़ाद वीज़ाज़ की, तो जो इंडिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं कैटेगरी, उसमें फ्रीलांसर वीज़ा भी है, उसमें आज़ाद विजिट वीज़ा भी है कि वीज़ा, आज़ाद वीज़ा लेके 7 से 10 लाख लगा के आ गया सऊदी अरब, उसके बाद जॉब हंट की और 2 से 3 महीने में अगर जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करवा लिया। ये एक रिस्की चांस होता है, मैं भी इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता मोस्टली, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस पे यानी कि यहाँ पर
जो अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो जॉब्स देख रहे हैं, तो मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम लोकल से उठा लें, अपना हम इन्वेस्टमेंट करें, और जो ओवरसीज हैं उनको इतना प्रेफर ना करें। लेकिन जो यहाँ पे आज़ाद आके सर्च कर रहे होते हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। इन दिस इन नॉट इन सेंस कि आपके पास कोई जागीरदार या कोई ज़मीनें हो, नहीं, आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 लाख की जो है ना अमाउंट, वो नॉर्मली होनी चाहिए, सिर्फ 1-2 महीने के लिए अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे आगे किसी किस्म की तंगी ना हो, क्योंकि यहाँ पे हार्श कंडीशंस हैं। उसके अलावा रहने के लिए आपको शुरू में बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी के साथ ही गुजारा करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको इतना चाहिए। माशाल्लाह किसी ने लाइन लगाना शुरू कर दी है इस पर। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइमलाइंस, 12 मंथ्स एक्टिवली हायरिंग हो रही होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो उसमें तो 24/7 यहाँ पर ना आपको ना 12 मंथ के लिए मिल रही है अपॉर्चुनिटीज। अगर आप लिंक्डइन को फॉलो करेंगे, आपको हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई पोस्ट नजर आ रही होगी। लुकिंग फॉर सुपरवाइजर, लुकिंग फॉर एंटोमोलॉजिस्ट, लुकिंग फॉर पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन, लुकिंग फॉर पेस्ट कंट्रोल ड्राइवर्स, ड्राइवर कम टेक्नीशियन, ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस टाइमलाइन जो आपका स्टार्ट होता है आफ्टर यू हैव हंटेड एनी जॉब, वो आपका नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स आपका, यानी कि प्रोसेस जो है वो 2 मंथ्स का ही है। आपका जब इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद आपने सीधा अपना मेडिकल करवाना है। आपने मेडिकल के बाद अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करवाने हैं। उसके बाद अपना जो वीज़ा है उसका प्रोटेक्ट लगवाना है आपने अपने पासपोर्ट ऑफिस से, रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। मोस्टली जो गल्फ की हैं इसके मेरे ख्याल में लाहौर इस्लामाबाद में होती हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आप विद इन लाइक 2 मंथ्स अपना ये सारा काम करवा के आप मूव हो सकते हैं। जो मैं अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ। लाइक मैंने अपना स्टार्ट किया था प्रोसेस जुलाई के एंड पे, और अगस्त फिर सितंबर में मैं सऊदी अरब में आ गया था। और रफली 2 मंथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अब हमारे पास जो कॉमन चैलेंजेस हैं और सोल्यूशन उसके क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एक तो इकोनॉमी है, उसके अलावा पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल टाइज हैं, ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूं तो वो टाइज वैसे नहीं है जैसे शो होते हैं मीडिया के अंदर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीडिया में बहुत अच्छा शो कर रहे हैं लेकिन ऐसा अच्छा है नहीं, लाइक इट इज डाउन थम्स। तो इन दिस सेंस आप लाजमी किसी न किसी से कंसल्ट करें पहले। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग हंटिंग द जॉब, तो किसी न किसी ऐसे बंदे को जो पहले वहाँ बैठा हुआ है। आपके पास देखें लिंक्डइन, आपके पास फेसबुक, आपके पास ये सारे प्रोफाइल्स हैं, आपने सिर्फ इसका अच्छा यूज़ करना है आपने। और उसके लिए जो प्रोफाइल्स हैं उनको फॉलो करें। उन फॉलो के अंदर उनके फॉलो करने के साथ अगर वो कुछ शेयर करते हैं तो उस चीज़ को भी आगे आगे फॉलो कर लें। ये आपको हेल्पफुल होगा इन हंटिंग योर जॉब। क्रैफ्टिंग योर प्रोफाइल फॉर सक्सेस, इसमें आपकी जो सीवी है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, और जो आपके इंटरव्यूज़ हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया है कि रेफरेंस काम आता है, लेकिन रेफरेंस भी उसका काम आना है जो रेफरी होगा उसको भी पता हो कि यार जिस बंदे को मैं बुला रहा हूँ या जिसको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उसके पास भी कोई स्किल्स या उसके पास इतनी क्या कहते हैं पावर है कि वो यहाँ पे आके सरवाइव कर ले। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पर अगर आगे यहाँ के यहाँ पर आके अगर आपने सरवाइव करना है तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेसिक जो स्किल्स हैं वो लाजमी होने चाहिए। तो मैं रेकमेंड करता हूँ यूरोप पास रिज्यूम लाजमी बनाएं अपनी। यूरोप पास रिज्यूम जो है वो आपको यूरोप में भी काम आती है, वेस्ट में भी काम आती है, और इवन के सऊदी अरब के अंदर भी काम आती है। यूरोप पास ना भी हो तब भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो यूरोप पास रिज्यूम है इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बिकॉज इसकी बेस पे वो समझते हैं कि यार बंदे को एटलीस्ट इतना पता है कि उसने वेबसाइट पे जाके सीवी ड्रॉप की हुई है, और उसको स्टैंडर्ड भी पता है कि जो कंपनीज हैं वो मोस्टली जो है वो यूरोपियन बेस्ड कंपनीज आ रही हैं, मोस्टली अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं वो सऊदी अरब में आके काम कर रही हैं। तो जो एम्प्लॉयर है वो समझता है कि ठीक है इस बंदे के पास एटलीस्ट इतनी बेसिक सेंस थी कि इसने एक क्राइटेरिया वाली प्रोफाइल जो है या सीवी है वो क्राफ्ट की है, रेडी की है। अपनी जो सीवी है उसको महदूद रखें। सीवी के लिए आपके पास बहुत मौका मौजूद है। मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपने अगर बीएस किया हुआ है, बीएस को हाईलाइट करें।
उसके बाद और कुछ बाकी सब कुछ साइड पे। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएस को हाईलाइट करें, देन आप अपने एक्सपीरियंस में आ जाएं। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है या आपने कोई प्रॉपर जॉब की हुई है 1 साल, 1 साल या 1.5 साल उसके रिलेटेड, उसको हाईलाइट करें। एंड देन अपनी जो है जो आपके इंटरेस्ट हैं, स्किल्स हैं, उनको हाईलाइट करें। इतनी आपकी सीवी प्रिसाइज और स्मॉल होगी, उतनी अच्छी वो बेट होगी। अगर आप सीवी को 3-4 पेज के लिए भर देंगे तो एक तो वैसे ही वो awkward लगता है उनको देखने के लिए, क्योंकि दे ओनली हैव 1 to 2 seconds। लाइक वो इतने में समझ जाती हैं। अगर उनके पास ए सॉफ्टवेयर हैं वो तो फिर पूरी छान के साइड पे कर देगा। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एंटोमोलॉजिस्ट, अब एंटोमोलॉजिस्ट के लिए आप एक दो हाईलाइट करें अपनी डिग्री एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। और उसके अलावा बाकी जो आपके सेकेंडरी आपकी हैं क्वालिफिकेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको हाईलाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे नो कि वो अगर उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है, दैट मीन्स पीछे से वो पढ़ के आया हुआ है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने 1 पेज की सीवी बनानी है, उसके अंदर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस ऐड करें। एक्सपीरियंस में अपने 2 से 3 पॉइंट्स में अपने रोल्स ऐड कर दें, लेकिन एटलीस्ट ऐड करें अपने रोल्स। और उसके बाद जो आपके स्किल्स हैं एक्सक्यूज मी सर। उस- जी। थैंक यू। और वो इसके लिए जो है ना वो मतलब कि 10 मिनट रहते हैं, आप जल्दी से जो है ना ये वाइंड अप कर दें ताकि फिर क्वेश्चन आंसर का जो है ना वो सेशन वो स्टार्ट कर सके। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इसको सम अप करता हूँ इन दिस सेंस के सैलरी एक्सपेक्टेशन में अगर हम जाएं, ठीक है, सीवी पे आप लोग काम कर लेंगे। वो जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप अपने ध्यान में रखें। अगर आप 1 से 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लेके आते हैं इन गल्फ मार्केट, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आपको जो ऑफर है वो मिलती है। जो नॉर्मल कंपनीज हैं, मैं हाई प्रोफाइल कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो नॉर्मली 3,000 रियाल ऑफर करती हैं बेसिक सैलरी। और अगर आप एज ए सुपरवाइजर आए हैं तो 3,000 होगी। अगर आप एज ए सीनियर टेक्नीशियन आते हैं पहले, ये यहाँ के मार्केट को समझे, तो 2,500 जो सऊदी रियाल है वो स्टार्टिंग होती है। उसके अलावा उनके अलाउंसेज अलग होते हैं, जो फूड अलाउंस है, जो उनका डेजर्ट अलाउंस है, या जो उनका बाकी उनकी पर्क्स हैं, उनकी उनके ओवर टाइम, उनके बोनसेस, उनकी सेल्स के लिहाज से वो सेपरेट होते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट है। निगोशिएट करने के लिए आप लाजमी जो है थोड़ी बहुत रिसर्च करें, चैट जीपीटी से पूछ लें कि यार सऊदी अरब के अंदर एंटोलॉजिस्ट की जो सैलरी है इस एक्सपीरियंस में कितनी होगी, वो आपको बता देगा रेंज। उस रेंज से आप इंटरव्यू के अंदर अपनी जो सैलरी है वो भी निगोशिएट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग लिंक्डइन पे अप्लाई करेंगे, वहाँ से भी आपको ऑफर कर लेंगे, उठा लेंगे। लेकिन मैं अगेन प्रेफर करूँगा, आप लोग जिस भी लिंक्डइन के ऊपर हंट कर रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर आपने कंपनी के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। वहाँ पे कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपने जो उनके बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, या जो उनके ब्रांच मैनेजर्स हैं, या जो उस कंपनी के एक और होते हैं सीनियर सेल्स कंसल्टेंट या सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, उनको आप लोग अप्रोच करें डायरेक्टली कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी सीवी है। तो वो वहाँ से आपको अच्छी जो है ना चांसेस होते हैं आपके अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको विन करने के लिए। पिटफॉल्स को भी अवॉइड करें कि जो अपनी आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर लाइक एवरीथिंग शुड बी जेन्युइन एंड लॉयल, ऑनेस्ट होनी चाहिए, कुछ भी आप इनके ऐसे ऐड ना करें। अच्छा जी, ऑनेस्ट एडवाइस एंड सेफ स्ट्रेटजीज। एडवाइस मेरी सबके लिए यही है कि सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि एक तो ऑनेस्ट रहें। आपने अपने सीवी के अंदर वही ऐड करना है जो आपने किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको ऐड करके फंसना, उससे बेहतर है कि बंदा सच बोल के वो ऐड ना करे। बाद में बंदा उसको विन कर लेता किसी तरीके अपना हुनर दिखा के, काम दिखा के। तो बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे, बाकी आपके पास एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड मैं भी ग्रुप में ऐड हूँ, किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे किसी भी टाइम वो सॉल्व कर सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरी वन इंशाल्लाह, बिकॉज आई हैव हेल्प्ड जस्ट 2 candidates in last week. They have been able to secure job in Saudi Arabia as an entomologist. Thank you so much, everyone. Jazakallah. I'm short the. Thank और you, sir. सब कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली पर्सनली अप्रोच नहीं करें इस तरह। सारे जो पार्टिसिपेंट है वो सर आपको कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए भी ऑब्वियसली डिस्टरबेंस होगी। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछने कोई क्यूरी है तो वो काइंडली ग्रुप में ही सर से कांटेक्ट करें, किसी भी स्पीकर से। If they can, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया, स्किप हो गया, वो अगर मुझे भेज भी दे तो आई डोंट माइंड। मैं एक क्वेश्चन भेज देता हूँ, वो समझ आ जाती है, हो जाता है।
because I've been doing this for like 3 years. सर I'm used to. थैंक यू, नाइस प्रेजेंटेशन, और आपने काफ़ी जो है ना वो मतलब कि सीवी के लिहाज से भी बताया है। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और कहूँगी कि आप सीवी पे ना थोड़ा सा और मतलब कि वो बता दें कि जैसे कुछ लोग जो है ना वो चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, तो एआई का और प्लेजरिज्म का इस चीज़ के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें। लिखें, आपने चैट जीपीटी से जितना कुछ लिखवाना है वो सब कुछ जो है एआई के सॉफ्टवेयर ने उसको पकड़ के प्लेजराइज करना साइड कर देना। खुद लिखें। एक तो ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट होके अपनी एक जो प्रोफाइल समरी है वो नहीं लिख सकते, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड यू आर गोइंग टू डील विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो खुद से लिखें, खुद से रिव्यू करें। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, या जो टेलर्ड रिज्यूम्स पड़ी हुई हैं गूगल पे, कहीं बहुत सारी पड़ी हुई है, आप उनको रिव्यू करें, उसके हिसाब से अपना जो आपका आपके इनपुट है वो डालें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इसके अलावा सर इंटरव्यू के लिहाज से थोड़ा सा गाइड कर दें कि उसमें किस किस लिहाज से जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इंटरव्यू इन इन विच सेंस, लाइक अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो मेनली जो है वो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को अच्छा इंट्रोड्यूस करवाएं। ये नहीं कि आपको पता है जी मेरा नाम फैसल है और आपके पास मेरी सीवी पहुंच चुकी है तो उसको रिव्यू कर लें, उससे इंट्रोड्यूस करवाएं। और जो पॉइंट्स आपने सीवी में लिखे हैं वो वहाँ ना बोलें। जैसे कि मैं जी, आई एम फैसल मुश्ताक, आई एम currently लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड एज एज पर दिस, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जो रोज रिक्वायर्ड है वो मैंने अचीव किए हुए हैं, मैंने वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है एंड आई हैव सर्टिफाइड डिग्रीज एज वेल। तो इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई। तो इस लिहाज से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन मोस्टली जो करते हैं, अगर मैं खाली पेस्ट कंट्रोल की बात करूं तो वो पूछेंगे आपसे कि टाइप्स ऑफ पेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, कॉकरोचेस के, फ्लाइज के लिए, बेड बग्स के लिए। बेड बग का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में बेड बग्स पे बहुत कम होता है। खटमल, चिड़े भी कहते हैं उनको पंजाबी में, उसके लिए यहाँ बहुत कम होता है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के साथ जो टाइप ऑफ पेस्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको पता हो। उसके अलावा जो उनको कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं, ये 3 चीज़ें आपकी टेक्निकल में आ जाती हैं, दैट्स इट। और एक और पॉइंट आपको ये होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। कभी ये ना कहें कि मैं डायरेक्टली ज्वाइन करूंगा या मैं रेडी हूँ। प्रॉपर उनको कहें कि जो मैं अपने जो मेरे रोल्स हैं इनको मैं माइंड अप करके तो ज्वाइन कर सकता हूँ, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर बताएं कि मैं जो अपनी करंट जॉब है इसका ये नोटिस पीरियड दूंगा 1 मंथ का या 2 मंथ का। उसके बाद अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अच्छे तरीके से हैंड ओवर करके अपने रिप्लेसमेंट को फिर मैं आपको ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। इससे अगले बंदे को जो इंटरव्यूअर है उसको ये सेंस आएगी कि यार बंदा रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो कल को हमें भी छोड़ेगा तो हमें एटलीस्ट 2 महीने का टाइम या 1 महीने का टाइम देगा जाने से पहले। थैंक यू सर। मैं एक पहले अनाउंसमेंट कर दूं कि जो है ना वो 7:40 पे हमारा सेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद सब लोग जो है ना ये रीज्वाइन कर लें इस सेशन को फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स और अगर फॉर मोर क्वेरीज। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे वो सैलरी की निगोशिएशन के लिए मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिहाज से कि कैसे जो है ना वो मतलब कि वो करना चाहिए, आंसर कैसे करना चाहिए। पहले नेगोशिएशन में आप ना उनको इसकी पहले थोड़ी रिसर्च करें, चैट जीपीटी से पूछें। जैसे कोई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या और आपके रेलेवेंट काम कर रहे हैं, उनसे पूछें कि वहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं, और उस ट्रेंड को जो आपने रिसर्च की होगी उसके हिसाब से उसको पुट करें कि सर ये जो रोल है इस रोल के हिसाब से ऑल दो 10 से 12 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप मुझे वो ऑफर नहीं करनी, लेकिन आप एटलीस्ट इतनी ऑफर करें कि जो मेरा यहाँ पे सर्वाइवल है और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उसके लिहाज से मेरी मुझे सेटिस्फाई हो। तो इस लिहाज से अगर आप सैलरी के नेगोशिएट करेंगे तो आपको एक अच्छा जो बजट है वो मिल सकता है। यानी कि ये भी नहीं वो आपको कहें कि जी 3 हज़ार, तो आप कह दें ओके डन। आपने ये कह दिया इसका मतलब है कि आप रेडी एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है तो आप उसको इस लिहाज से नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर मैंने इस पे सर्च की थी, इसकी जो सैलरी है वो 3 से 4500 रियाल आ रही है, तो अगर आप इसके दरमियान मुझे कहीं पे अगर हम फॉल कर लें 3500 3600, तो ट्राई टू नेगोशिएट, लाजमी नेगोशिएट करें। कुछ ना कुछ आपको अगर कुछ ऊपर मिल जाता है तो ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा। रिसर्च जरूरी है और पहले।
थैंक यू सर। और सर सीवी में मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि जैसे जो है ना वो लॉन्ग पैराग्राफ में लिखें या टू द पॉइंट, Yes. जैसे पॉइंट्स बना के लिखें, जो अगर हमने कहीं के एक्सपीरियंस लिया हुआ है जैसे किसी कंपनी में किया तो उसके काफी पूरी डिटेल मेंशन कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या सिर्फ पॉइंट बनाकर इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। और फिर रेफरेंस के लिहाज से कि वो रेफरेंस मेंशन करने चाहिए, जैसे कॉन्टेक्ट रेफरेंस मांगे हुए होते हैं अक्सर उन्होंने नहीं, कुछ कॉन्टैक्ट रेफरेंस कंपनीज तो में। नहीं मांगता। यहाँ पे आजकल इतनी हो चुकी है कि या तो कॉन्टैक्ट रेफरेंस व्हाट्सएप पे पहले डिसाइड हो जाते हैं, या उनको पता होता है कि ये बंदा कहाँ से पढ़ा हुआ है, उनको रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। बाकी जो अगर आपने एक मेंशन